Proceeding toward the next questions, blue box questions. Next question is, what are the component of transport system in human being? What are the components of transport system? Transport system के component क्या हैं? First is circulatory medium. Either it will be blood and lymph, दोनों ही हैं. Circulatory medium आपकी body में blood also and lymph also. Blood vessels. There are three type of blood vessels: artery, veins and capillary in your body. A pumping organ, that is heart, is present in your body. Next, what are the functions of these component? इन सब components के functions क्या हैं? Blood का function क्या है? Lymph का, arteries का, veins, capillaries and heart. Tell the functions of all these component of circulatory system. So you have to explain the function of blood. Blood help in transport of oxygen, nutrient, carbon dioxide and nitrogenous waste को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है. लिम्फ किस में हेल्प कर रहा है? लिम्फ किस में हेल्प कर रहा है? लिम्फ कलेक्ट द एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न इट टू द ब्लड. जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको लिम्फ कलेक्ट करता है और ब्लड के साथ रिटर्न कर देता है. इसके अलावा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है टू योर बॉडी. ब्लड वेसल्स, थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट: आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरी. दे कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन. हार्ट से वेरियस ऑर्गन में ब्लड कैरी करती हैं आर्टरीज, और वीन्स ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टू द हार्ट. नेक्स्ट इज द पंपिंग ऑर्गन हार्ट. हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन योर बॉडी, और इसके अलावा इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट. इम्प्योर ब्लड भी रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट और लंग्स के पास भेज देगा फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर प्योरिटी, सो डैट कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड and the blood will get purified from the lungs. So component of transport system आपने करना है circulatory medium, blood vessel and pumping organ के बारे में आपने बताना है, और हर एक का function बताना है. blood का function, lymph, artery, veins, capillary and heart. Functions should be explained of all these component of the transport system. Next is the question, why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? क्यों जरूरी है सेपरेट करना? Why there is separation of pure and impure blood in mammals? See, it is very necessary to separate the pure and impure blood to maintain the efficient supply of oxygen into your body, ताकि आपकी बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके. इट इज़ असेंशियल इन एनिमल डैट हैव हाई एनर्जी नीड. कुछ एनिमल्स में एनर्जी नीड्स हाई होती है, जैसे मैमल्स एंड बर्ड्स. द एनिमल्स डैट हैव हाई एनर्जी नीड्स in their body, oxygenated and deoxygenated blood should be separated. They are called warm blooded animals. Warm blooded animals are the animals that cannot change their body temperature with surrounding and have high energy demands and maintain their body temperature. For this they constantly need oxygen rich blood supply. तो हमें हमारी बॉडी को constant oxygen rich blood, pure blood supply का जरूरी है. Whereas oxygen mix with the glucose to produce energy. ऑक्सीजन कंबाइन करेगा ग्लूकोज के साथ एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो दैट्स वाई द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज वेरी नेसेसरी, सो दैट प्योर एंड इम्प्योर ब्लड डज नॉट गेट combined, and it also help in supplying the efficient amount of oxygen to your body. Next is the how the amount of urine produced is regulated. How the amount of urine produced is regulated. कितने अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होगा, कैसे रेगुलेशन हो रहा है उसका. द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन हाउ मच वाटर इज रीएब्जॉर्ब बाय द नेफ्रॉन टिब्यूल. नेफ्रॉन टिब्यूल से कितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा. द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा किस पे डिपेंड करेगा. नंबर फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी. आपकी बॉडी में कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा यूरिन का प्रोडक्शन क्या है आपकी बॉडी में. नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड. आपकी बॉडी में कितना वेस्ट है दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड. सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड. So the amount of urine produced is regulated by the amount of excess water present in your body. आपकी बॉडी में कितना excess water present है. Next is the amount of dissolved waste to be excreted. कितना waste बाहर निकालना है आपकी बॉडी से. The more the quantity of excess water in the body, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में पानी होगा, excess water होगा, the more the urine produce, उतना ही ज़्यादा urine produce होगा that need to be excreted.
द लेस द क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर कम होगा उतना ही ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. इफ़ देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व वेस्ट इन द बॉडी, अगर आपकी बॉडी में वेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, द मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, उस टाइम पे आपको ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए टू रिमूव दिस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, इन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम योर बॉडी. Thus, the amount of urine produced in your body is regulated by this manner. Next, we are doing the chapter and question answers. Till now, we have completed the blue box question answers. The kidney in human being are a part of system for. किडनी जो है ह्यूमन बीइंग में किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. राइट आंसर इज एक्सक्रीशन. इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन. किडनी हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड, फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. क्या क्या चाहिए? Carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. So all these three things are required. Answer will be all of the above. Carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight are required for the autotrophic mode of nutrition. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. जो pyruvate का breakdown हो रहा है, pyruvate के breakdown होने के बाद in the presence of oxygen, पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये प्रोसेस व्हाट इज द साइट ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन? सो राइट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शंस आर गिवन टू यू. साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस. द राइट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट इज द हाउ फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? फैट का डाइजेशन कैसे हो रहा है आपकी बॉडी में एंड व्हाट इज द साइट ऑफ दिस प्रोसेस? फैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम कर रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन वर्किंग विद द लिवर एंड पैनक्रियाज. स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ दो असेसरी ग्लैंड है, दैट इज लिवर. लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है? बाइल जूस. एंड पैनक्रियाज. पैनक्रियाज क्या सीक्रेट कर रहा है? लाइपेज एंजाइम, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. बाइल जूस क्या करता है? लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा. और पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज क्या कर रहा है? फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा. लार्जर फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ accessory gland that is present in small intestine, that is liver and pancreas. सो दिस इज टर्म्ड एज इमल्सिफिकेशन. इस पूरी की पूरी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. और इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में. और किसकी हेल्प से हो रहा है? असेसरी ग्लैंड की वजह से हो रहा है. लिवर एंड पैनक्रियाज आर द असेसरी ग्लैंड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. फर्दर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.